about the Python dictionary. A dictionary is a collection which is unordered, unchangeable and indexed. Unordered means जिसका कोई order ना हो, और जो changeable means जो बदल सकता हो, और index means कि जो भी value दी है उसकी एक कोई position है. In Python dictionary are written with a curly bracket and they have keys and values. Python में डिक्शनरी को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसकी कीज और वैल्यूज होती है. अब कीज क्या होती है? क्रिएट अ प्रिंट डिक्शनरी. इसमें हमने दिया ब्रांड की है, कोड उसका मॉडल है, वैल्यू है, मॉडल की है और मस्तंग उसका वैल्यू है, ईयर उसकी की है और 1964 उसका वैल्यू है. सो व्हेन वी राइट द create command, then it will create the dictionary by name of this dictionary. This dictionary equals to in curly bracket brand and key and value, key and value, key and value. So 3 keys and 3 values. How to access the item in dictionary? For that we have to get the value with the use of key. When we write this dictionary and model is the second key, and when we print then it will give the master. So write it and run it. Look at here. The access item can access the item of dictionary by referring to its key name inside the square bracket. हमने क्या लिखा था? This dictionary square bracket में model. Get the value of the model key must have. So आपको model की value must have मिल जाएगी. Print. There is also a method called get that will give you the same result. Get the value of the model key. Here I have to write this key dot get within small bracket model. So this will do the same as this line, this dictionary in big bracket model. When you write a keyword, then it give the Mustang, and when you write the get method, then it will give you a same thing. How to change the value? You can change the value of the specified item by referring to its key name. अब जैसे हमको year यहाँ बदलना है, year है 1964 and you want to change it into 2018. So you write here this year, this dictionary year equals to 2018. So directly it will assign the 2018 in place of 1964 in a year, because you have given the key year. So how it will do, just see. Let's see. You can change the value of a specified item by referring to its key name. Year. Change the year to, इसने change कर दिया 1964 को 2018 कर दिया. Loop through the dictionary. अब डिक्शनरी के लूप कैसे बनाएंगे, कैसे हम उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे? Loop through the dictionary. You can loop through the dictionary by using for loop. For loop हम कई बार बता चुके हैं, और for loop के लिए क्या लिखना पड़ता है? For x in this dictionary. जो भी वैल्यू बनी है उसको, उसमें से x को निकालते हैं और 1 by 1 हम सारी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे. प्रिंट ऑल वैल्यू इन द डिक्शनरी 1 by 1. अब यहाँ पे कीज प्रिंट कर रहा है x इन दिस डिक्शनरी, तो कीज प्रिंट करेगा, लेकिन जब हम प्रिंट x की जगह प्रिंट दिस डिक्शनरी x लिख देंगे तो वैल्यू प्रिंट करेगा. दोनों में डिफरेंस है, इसमें कीज प्रिंट करेगा और इस वाले में वैल्यू प्रिंट करेगा. You can also use the value method to return the value of the dictionary. अब यहाँ पे ब्रैकेट x लिखने की जगह अगर हम वैल्यूज लिख देंगे तो वो वैल्यू एक्सेस करके प्रिंट कर देगा.
तो दो मेथड है वैल्यू प्रिंट करने का, और कीज प्रिंट करने के लिए हमें फॉर लूप लगा करके वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी। अब इसको देखिए कैसे कर रहा है ये, रन मॉड्यूल, ओके। आप इंडेंटेशन जरा भी गड़बड़ करिएगा तो वो एरर देगा, तो बी केयरफुल, डोंट गिव द इंडेंटेशन। यहाँ प्रिंट ऑल द की नेम इन द डिक्शनरी वन बाय वन। फॉर लूप से क्या किया, ब्रांड, मॉडल, ईयर, की प्रिंट कर दिया और वैल्यू प्रिंट किया, फोर्ड मस्टैंग एंड 2018। यू कैन ऑल्सो यूज द वैल्यू में, और दूसरी बार उसने फिर प्रिंट किया कैसे, वैल्यू मेथड यूज करके, जो हमने अभी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए तीन चीज हो गई ना, पहला उसने की करा, और फिर जब डिक्शनरी लेकर के उसको इंडेक्स दिया तो वैल्यू किया, और जब वैल्यू मेथड यूज किया तो वैल्यू प्रिंट किया। तो दो में वैल्यू प्रिंट कर रहा, ऊपर में की प्रिंट कर रहा है, ठीक है। लूप थ्रू बोथ कीज एंड वैल्यूज, अब दोनों चीजें एक साथ प्रिंट करेंगे। पहले अलग अलग किया, अब दोनों चीज कैसे प्रिंट करेंगे, हम देंगे फॉर एक्स कॉमा वाई इन दिस डिक्शनरी आइटम, है ना, आइटम मेथड यूज करके। लूप थ्रू बोथ कीज एंड वैल्यूज बाय यूजिंग द आइटम मेथड। जब आइटम मेथड यूज करेंगे तो वो कीज और वैल्यूज दोनों देगा। यहाँ पे कहा प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो वन बाय वाई कीज भी दे देगा और वैल्यू भी दे देगा। कैसे देगा, फाइल से ये आया, ये देखो, लूप थ्रू बोथ कीज एंड वैल्यू बाय यूजिंग द आइटम मेथड। अब यहाँ पे ब्रांड भी दे रहा, फोर्ड भी दे रहा, मॉडल भी दे रहा। पहले क्या दे रहा था, पहले में की दे रहा था, फिर वैल्यू दोनों में दे रहा था अलग अलग तरीके से, एक वैल्यू यूज करके एक इंडेक्स यूज करके। यहाँ पे जब दो वैल्यू ले ली एक्स वाई, तो वो की भी प्रिंट कर रहा है और वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, चेक इफ की एग्जिस्ट। अब हमें कोई पर्टिकुलर की चेक करनी है कि वो है कि नहीं है, तो उसको हम इफ की एग्जिस्ट से चेक करते हैं। अब हमारी डिक्शनरी में है फोर्ड मस्टैंग इन 1964। इफ मॉडल इज इन दिस डिक्शनरी, यस मॉडल इज वन ऑफ द की इन दिस डिक्शनरी। अब हम चेक कर रहे हैं कि मॉडल की है कि नहीं है इसमें, तो मॉडल की है हमारी, तो वो दे देगा यस मॉडल इज वन ऑफ द की इन दिस डिक्शनरी। प्रिंट डिक्शनरी लेंथ। अब डिक्शनरी की लेंथ हमें प्रिंट करनी कि कितने आइटम हैं उसमें, हाउ मेनी आइटम्स की वैल्यू पेयर्स द डिक्शनरी हैज यूज, प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पे वो काउंट करेगा 1 2 3 और तीनों प्रिंट कर देगा। तो दो काम अभी हमें देखना है कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और नंबर ऑफ आइटम उसमें कितने हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए, determine how many items key value pairs a dictionary has, use the len function। तो तीन इसमें प्रिंट कर दिया, और उसके पहले था determine if specified key is present in the dictionary, use the in keyword, check if model is present in the dictionary, if key exists। तो use model is one of the key in the dictionary, इसमें दे दिया क्योंकि मॉडल इसमें प्रेजेंट था। इफ एग्जिस्ट यूज करके, इफ की एग्जिस्ट यूज करके हम चेक करेंगे कि मॉडल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे की कौन सी है, मॉडल है इन दिस डिक्शनरी, है ना। इफ की एग्जिस्ट, तो मॉडल डिक्शनरी में है, में इन कीवर्ड यूज करके करेंगे। प्रिंट एडिंग आइटम, अब इसी में हमको एक आइटम बढ़ा देना है डिक्शनरी में, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंडेक्स यूज करेंगे या कीवर्ड यूज करेंगे और इसको बढ़ा देंगे। यहाँ क्या किया है, दिस डिक्शनरी कलर कीवर्ड यूज किया और इक्वल्स टू रेड कर दिया, तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखें क्या करेगा,
ब्रांड फोर्ड मॉडल ये ईयर इतना कलर ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए बस इंडेक्स की देनी पड़ेगी और उसमें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए की वैल्यू दी और असाइन कर दिया। अब रिमूव आइटम करेंगे, तो रिमूव आइटम के लिए क्या करना पड़ेगा? रिमूव आइटम के लिए देयर आर सेवरल मेथड टू रिमूव आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। द पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम विद द स्पेसिफाइड की नेम। अब पॉप हम यूज करके जैसे यूज करते थे वैसे ही हम पॉप यूज करके मॉडल यूज करके मॉडल हटा सकते हैं। दिस डिक्शनरी पॉप मॉडल, हमने कहा मॉडल को हटा दो तो वो मॉडल हटा देगा। द पॉप आइटम विल रिमूव द मॉडल। अब हम इसको रन करें, ये there are several methods to remove item from dictionary. The pop method remove the item with a specified key name. हमने मॉडल हटाया तो उसने क्या दिया? ब्रांड फोर्ड और ईयर 1964। ठीक है, अब क्या करेगा? अब एक मेथड और है, कैसे रिमूव करे? पॉप आइटम करना। केवल पॉप करने से क्या किया? की दिया तो वो हटा दिया उसने। अब पॉप आइटम करने के लिए क्या करेंगे? पॉप आइटम करेंगे, मेथड रिमूव लास्ट इंसर्टेड आइटम। कोई भी एक लास्ट इंसर्टेड आइटम को वो हटा देगा। जैसे हमने पिछली बार बताया था कि पॉप करने से सेट में कोई भी लास्ट आइटम हट जाता है, और क्योंकि वो अनऑर्डर होता है तो ये नहीं पता होता कि क्या चीज हमारी हट जाएगी। जबकि डिक्शनरी विच इज अनऑर्डर तो है, लेकिन इसमें इंडेक्स है, इसलिए पर्टिकुलर इंडेक्स हटा सकते हैं या पॉप करके हम पॉप आइटम करके उस पर्टिकुलर आइटम को भी हटा सकते हैं, है ना। पॉप आइटम करके उसको हटा देंगे, इसमें से कोई लास्ट का आइटम हट जाएगा। तो कैसे हटेगा ये देखते हैं। The pop item method remove the last inserted item in version before 3.7. A random item is removed instead. बल्कि कोई भी एक आइटम रिमूव हो जाता है। अब पहले में देखिए हमने मॉडल रिमूव किया, लेकिन पॉप आइटम से क्या किया उसने? ईयर को हटा दिया, लास्ट वाले इसको हटा दिया। पहले में हमने आइटम कीवर्ड डिफाइन किया था और दूसरे में हमको कीवर्ड डिफाइन नहीं है तो दूसरा हट गया, है ना। यहाँ पे हमने दिया मॉडल तो मॉडल हटा, लेकिन पॉप आइटम में क्या हटा? ईयर हट गया, लास्ट वाला हट गया। द डेल कीवर्ड रिमूव द आइटम विद अ स्पेसिफाइड की नेम। डेल क्या करता है? तीसरा मेथड है डेल। डेल से क्या करेगा? डेल हमने दिया डिक्शनरी मॉडल, तो डेल कीवर्ड कैन ऑल्सो डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली। स्पेसिफिक की नेम को हटाएगा, है ना, और पूरी डिक्शनरी को भी हटा सकता है ना। तो पहले स्पेसिफिक देख लें फिर देखते हैं। फाइल रन किया, ये डेल कीवर्ड रिमूव द आइटम विद स्पेसिफाइड की। हमने मॉडल डिफाइन किया था तो मॉडल डिलीट हो गया। अब डेल क्या करता है? पूरे डिक्शनरी को भी हटा सकता है। तो पूरी डिक्शनरी हटाने से पहले अगर हम इसको प्रिंट कर ले, Ctrl+C, है ना, तो वो दिखा देगा डिक्शनरी में क्या है। और जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि जब हम प्रिंट करना चाहेंगे तो डिक्शनरी डिलीट हो चुकी रहेगी, तो वो प्रिंट नहीं करेगी बल्कि एरर दे देगी। कैसे देगी इसको देखते हैं। ये देखिए, द डेल कीवर्ड कैन ऑल्सो डिलीट द डिक्शनरी कंप्लीटली। डिक्शनरी में क्या था? फोर्ड मॉडल ईयर था, लेकिन जब हमने डिलीट कर दिया और प्रिंट करना चाहेंगे तो क्योंकि डिक्शनरी में कुछ नहीं है तो वो एरर दे देगा। अभी इसको हम हैश लगा दें ना तो फिर डिलीट हो जाएगा, तो
नहीं करेगा। अब हमने कहा कि क्लियर कर दो, क्लियर मेथड एम्प्टी द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में जो कुछ है उसको खाली करना है तो क्लियर मेथड यूज कर लेंगे, है ना। और इसको जब क्लियर करेंगे तो वो खाली हो जाएगी, है ना। तो ये आया क्लियर मेथड एम्प्टी द डिक्शनरी। तो अब कुछ भी प्रिंट करेंगे तो डिक्शनरी नहीं आएगी। मान लीजिए यहाँ पे आप करते हैं प्रिंट दिस डिक्शनरी, तो वो कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा, है ना, क्योंकि डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं है। अब कॉपी डिक्शनरी करना है। यू कैन नॉट कॉपी अ डिक्शनरी सिंपली बाय टाइपिंग डिक्शनरी 2 टू डिक्शनरी 1, है ना। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, ये देखते हैं इसको। माय डिक्शनरी, ये देखिए, ये यहाँ पे देयर आर वे टू मेक अ कॉपी। ये कॉपी डिक्शनरी, इसके पहले ये देखिए खाली हो गया। ये द क्लियर मेथड एम्प्टी द डिक्शनरी, जब हमने डिक्शनरी को प्रिंट किया तो वो खाली हो गई। और कॉपी डिक्शनरी में क्या करेगा, यू कैन नॉट कॉपी डिक्शनरी सिंपली बाय टाइपिंग डिक्शनरी 2 टू डिक्शनरी 1 बिकॉज डिक्शनरी 2 will only be reference to dictionary 1 and change made in dictionary 1 will automatically also be made in dictionary 2, क्योंकि डिक्शनरी 2 जो है वो डिक्शनरी 1 को रिफर करेगी और जो कुछ भी चेंज डिक्शनरी 1 में होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्शनरी 2 में भी हो जाएगा। There are ways to make a copy. One way is use the built-in dictionary method. उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बिल्ट इन डिक्शनरी मेथड यूज करना पड़ेगा जो हमारी डिक्शनरी को कॉपी करेगा। मेक अ कॉपी ऑफ डिक्शनरी विद द कॉपी मेथड। ठीक, तो हमारी ये थी डिक्शनरी, वो कॉपी होकर के माई डिक्शनरी बन गई। कैसे बनी, लिखने का तरीका देख लीजिए। माई डिक्शनरी इज इक्वल टू दिस डिक्शनरी डॉट कॉपी, है ना। Print another way to make a copy is to use a built-in function dict। और दूसरा फंक्शन क्या है, dict है। dict से क्या होगा, make a copy of dictionary with the dict function। अब फंक्शन यूज करके हम डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं। My dictionary is equal to dict this dictionary, print my dictionary। तो अब वो डिक्ट या कॉपी दो तरह से हम डिक्शनरी को बना सकते हैं कॉपी करके। नेक्स्ट डिक्शनरी, इसको रन कर ले, फिर नेस्टेड देखते हैं क्या करेगा। ये आया मेक अ कॉपी ऑफ डिक्शनरी विद डिक्ट फंक्शन। जो काम कॉपी करेगा वही काम यहाँ पे डिक्ट करेगा। तो दो मेथड्स हैं, और डिक्ट फंक्शन है और कॉपी है, जिससे हम डिक्शनरी को बना सकते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी, अब डिक्शनरी को नेस्टेड बनाना है। A dictionary can also contain many dictionaries. This is called nested dictionary. Create a dictionary that contain 3 dictionary। अब माई फैमिली करके एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर चाइल्ड 1 रवि है, 2004 उसका ईयर है, डेट ऑफ बर्थ अलका है, 2007 है, रानी है, 2011 है। अब 3 डिक्शनरी, एक डिक्शनरी माई फैमिली में आ गया। एक फैमिली में 3 बच्चे हैं या जो भी है, फादर मदर बच्चे भी हो सकते हैं, जो भी है 3 नहीं, इसमें चिल्ड्रन दिया हुआ है, चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3। फैमिली में 3 चिल्ड्रन है तो उनकी 3 डिक्शनरी को एक डिक्शनरी में रखा है। अब यहाँ पे फैमिली, माई फैमिली बना करके उसमें इसको प्रिंट किया तो वो नेस्टेड डिक्शनरी बन गई। ठीक है, कैसे बनी ये देखिए। ये आया चाइल्ड 1 नेम रवि, ईयर इतना, चाइल्ड 2 नेम अलका, ईयर इतना, चाइल्ड 3 नेम इतना। तो करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट बन जाएगा और माई फैमिली डिक्शनरी बन जाएगी। Print, or if you want to nest 3 dictionary that already exist as a dictionary, create 3 dictionary then create 1 dictionary। अगर
एक डिक्शनरी बनाई जिसमें 3 बच्चे थे, अब अलग अलग डिक्शनरी बनाया। हमने बनाया चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, है ना। और उसके बाद माई फैमिली बनाया। चाहे माई फैमिली पहले डिफाइन करके तब चिल्ड्रन बना लो, चाहे चिल्ड्रन पहले डिफाइन करके तब फैमिली बना लो। तो फैमिली के अंदर चिल्ड्रन 1, चाइल्ड 1 दे दिया, चिल्ड्रन 2, ये हमारा कीवर्ड हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई, है ना। माई फैमिली में चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 कीवर्ड है, और ये हमारा जो पहले से डिक्शनरी बनी हुई है चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, वो उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो उसको वो लेकर माई फैमिली बना देगा। अब ये कैसे बनेगा देखते हैं यहाँ पर। और या फिर डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर यूज करके हम डिक्शनरी बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द डिक्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ न्यू डिक्शनरी। दिस डिक्ट इक्वल्स टू डिक्ट ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, ईयर, है ना। सीधे डिक्ट मेथड यूज करके हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर बना सकते हैं। इसको रन करते हैं। ये आया, create 3 dictionary then create 1 dictionary that will contain the other 3 dictionary, है ना। तो चाहे पहले बड़ी डिक्शनरी बना के उसके 3 अंदर छोटी नेस्टेड डिक्शनरी बनाए, चाहे पहले 3 डिक्शनरी बनाकर फिर बड़ी वाली में उसको असाइन कर दें, और या कंस्ट्रक्टर के यूज करके हम डिक्शनरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जो डिक्शनरी में मेथड हैं वो है पाइथन हैज अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड दैट यू कैन यूज डिक्शनरी, जिसमें से हम काफ़ी पढ़ भी चुके हैं। क्लियर पढ़ा है, कॉपी पढ़ा, फ्रॉम की, रिटर्न द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की एंड वैल्यू। फ्रॉम की किसी स्पेसिफिक की से बाद की जितनी कीज हैं उसको दिखाएगा। गेट से अभी हमने बताया वैल्यू मिलती है आइटम से, लिस्ट कंटेनिंग द टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर, है ना। दोनों दे देगा, की और वैल्यू दोनों देगा। की से केवल की देगा, और पॉप से रिमूव करेगा, पॉप आइटम से लास्ट वाला रिमूव करेगा। सेट डिफॉल्ट रिटर्न द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की, the key does not exist. If the key does not exist, insert the key with the specified value. अगर कोई की नहीं है तो उसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर्स, वैल्यूज वैल्यू रिटर्न करेगा। ऑलमोस्ट सारी बता दी, अब 1-2 बचा है, वो आप अपने से ट्राई करिए, सिंपल है, हो जाएगा। So today it is all. Thank you viewer. Please share and subscribe if you like. Thank you.